afternoon and welcome back to all of you as we continue with our panel discussions right here at the TV9 Network World Travel and Tourism Festival that we have in fact been hosting for the last 2 days, and today is the last and the third day. So yes, we have quite a few insightful discussions planned for you, but before I introduce the next topic to you, let me quickly extend our gratitude to our sponsors. Celebration partner Royal Ranthambore, powered by Rosa Herbal Care. Style partner Killer, special partner Hint, state partners Gujarat Tourism, Karnataka Tourism, Telangana Tourism, Uttarakhand Tourism. Associate sponsor Tata AIG, partner Sensodyne, official EV partner Ampere, gifting partners Kaya, beauty products partner Grandmother Beauty, Go Green Initiative partner Ropan, healthcare partner Fortis, hydration partner Jal, entertainment partner PR Entertainment, digital media partners Daily Hunt and Indixital, and social media partner Xplurger. Well, you know, before I invite my next panelists for this session, let me just pose this question to all of you, and this is especially for people who are interested in editing their particular journey, their experience while they're traveling. They've probably still not started blogging completely, but they're on their way to that very particular career, if you want to call it that at this point. But what are the biggest challenges you face when you speak of editing travel experience? You know, we have solo travelers, we have people who travel with their families. So what is that balance you can create between having a private, nice, cozy vacation with your family, but at the same time also come up with creative content for your audience out there to engage with them, to interact with them, and to influence them, of course. To answer all of these questions, we'll have with us our next panelists at this point, the ones who will be joining us for this session. Sachin Chauhan, travel blogger and photographer. I'd want to welcome him to the stage. Welcome Sachin, and thank you so much for joining us here today, this afternoon. Please take a seat, and next up, representing Xplurger, we have Saurabh. And a big round of applause for both of them. In fact, as we speak of Saurabh, in just 8 months, he has skyrocketed from 0 to 6.5 lakh followers, building a travel community that trusts his vision. And he's giving away free tips. Remember, please listen very carefully to this session. And this, in fact, the tips that he shares, that's what makes him special, and that's what his entire following community looks up to, I think. Thank you so much, Saurabh and Sachin, for joining us. Please take a seat. So, well, we begin this session. It is with regards to editing like a pro. So, we'll exactly come to you right away with the tips. But, सचिन आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि जब हम एडिटिंग की बात करते हैं, जैसे मैंने भी अभी पूछा सबसे कि सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है टू नॉट ओनली कैप्चर दैट प्लेस, क्योंकि बहुत सारे डिलेमास होते हैं एक ट्रैवल ब्लॉगर के लिए कि हम खुद भी वो एक्सपीरियंस करें उस जगह को, पर हम उसे कैप्चर भी करें, और फिर एडिटिंग में भी दूसरी दिक्कतें आती है कि उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को रिक्रिएट कैसे करें अपने ऑडियंस के लिए कि वो इमर्सिव एक कंटेंट क्रिएट हो उनके लिए. आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बेसिकली 2 तरीके की चीज़ें होती हैं. बहुत सारा मिसकंसेप्शन है अबाउट एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग. हम एडिटिंग टर्म यूज़ करते हैं. पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, एडिटिंग मतलब होता है कि अगर आप किसी प्लेस पे गए, आपने 100 पिक्चर करी और आप घर वापस आए, आप उन 100 में से 10 सेलेक्ट करते हो, दिस इज़ कॉल्ड एडिटिंग. जब वो किसी सॉफ्टवेयर में जाती है, दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट प्रोसेसिंग. सो ये क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपने क्वेश्चन पुटअप किया मैं उसका आंसर करता हूँ. एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर, एज ए फोटोग्राफर, पहले मैं भी जब ज़्यादा था तो मेरे को लगता था कि यार मैं इन्जॉय नहीं कर पा रहा, मेरे को सब चीज़ें ढूंढनी है. तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि जब भी आप किसी भी प्लेस पे जा रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं, तो आप प्रेशर मत बनाएं अपने आप पे कि मुझे लेके ही आना है शॉट, ठीक है? क्योंकि मेरा एक मानना है कि मौत और शॉट कभी भी मिल सकते हैं, ठीक है? आई थिंक दैट्स अ क्रूशियल लाइन. एवरीबॉडी आउट देयर, मौत और शॉट कभी भी मिल सकते हैं. सो ऑलवेज प्रिपेयर, बट एंजॉय करो उसको, ठीक है? एक ना बहुत एक वर्ड होता है, मेरे को जो फील हुआ है 8 सालों में,
एफर्टलेसली एफर्ट, ये जब आप सीख जाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ऐसे प्रेशर नहीं बनाना कि अरे शॉट ही लेना है, शॉट लेना है। द थिंग इज एंजॉय करो, कहीं शॉट मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। 99% आपको फेलियर मिलते हैं, और जो फेलियर है वही आपको बनाएगा कि यार हाँ ये 1% क्या है, वो तो चीज़ें आप प्रोसेस एंजॉय करो। द होल थिंग इज कि ना, एक ना बहुत बड़े फोटोग्राफर थे हेनरी कार्टर ब्रेसन, फादर ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी, उन्होंने एक बात बोली कि आई डोंट लाइक टू पोस्ट माई पिक्चर, प्रिंट माई पिक्चर्स, द होल थिंग इज द प्रोसेस। आप प्रोसेस एंजॉय करो, धीरे धीरे करके वो समझने आने लगता है। तो मेरे लिए सच बताऊं तो कोई चैलेंज नहीं है, मैं सीखता ही हूँ। अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो भी अच्छा है, नहीं तो और भी अच्छा है कि अगली बार और पैशन से जाऊंगा। You keep learning and you keep experiencing. Right, right. That is the key to your travel experiences for you viewers out there. You know, next up, Saurabh, I would want to ask you this question, and since we've mentioned 8 months the community you have created for all the new travel bloggers out there, or people who aspire to be travel bloggers out there, what would you say, how important is the role of storytelling technique? आप क्या स्टोरी आपके खुद के एक्सपीरियंस से बोलना चाहते हैं, आपके खुद के ट्रैवल जर्नी से बोलना चाहते हैं, उसको कैप्चर करना कितना मुश्किल होता है और उसको प्रोड्यूस करना कंटेंट में कितना मुश्किल होता है? जैसा कि अभी सचिन भाई ने बोला कि मौत और शॉट कभी भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्रैवल जर्नी पे हैं, मेरा यही कहना है कि आप चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश करें, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है। मैंने जून में स्टार्ट किया था और अभी हमारे कुछ 6.5 लाख फॉलोअर्स हैं, और ये हुआ है स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही, क्योंकि जो हम स्टोरी पहुंचाना चाहते हैं, जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, वो एक्चुअली क्लियरली पहुंचा है, तभी लोगों ने हमें फॉलो किया है, तभी लोगों ने हमें इंटरेस्ट दिखाया है और सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसीलिए आप ये चीज़ जान करके थोड़ी सी शॉक हो जाएंगे कि हमारे सिर्फ एक वीडियो में हमें करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स मिले थे, ठीक है। तो ये हुआ इसीलिए क्योंकि हमारा मैसेज क्लियर था। हमने एडिटिंग ज़्यादा कुछ नहीं की थी। एडिटिंग में भाई ने बोला जैसा कि कुछ नहीं होता, पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि आपको एडिटिंग के स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, एडिटिंग का सेंस होना चाहिए। और आप इस तरीके से एडिट करो चीज़ें, आप ट्रैवल पे जा रहे हो, आप क्या चीज़ें कवर कर रहे हो, क्या चीज़ें कैप्चर कर रहे हो, और उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो ताकि मैसेज क्लियर हो जाए अपनी जनता के लिए, ठीक है। हम मैसेज क्लियरली देना चाहते हैं ताकि अब जो भी मैं पोर्ट्रे करना चाहता हूँ वो लोगों तक सही जाए। अब मैं पोर्ट्रे ए करना चाहता हूँ, बी जाएगा तो ऑब्वियसली लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कनेक्शन कहीं ना कहीं बिल्ड हुआ है बिकॉज ऑफ अवर स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप सही तरीके से ऑडियंस तक रीच कर पाएँ। और शायद हम वो करने में अभी तक सफल रहे हैं, इसीलिए थोड़ी ग्रो कर रहे हैं। आप दोनों ने ये कहा है कि शॉट के पीछे मत भागिए, पर अगर हमने मान लो कि एक शॉट मिस हो गया एंड वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हाउ वी डिडंट गेट दैट शॉट, दैट परफेक्ट सनसेट और दैट परफेक्ट सनराइज, वी कुडंट कैप्चर इट प्रॉपर्ली, तब क्या करते हैं? देन व्हाट इज योर मेंटालिटी कि हाउ वुड यू वांट टू प्रोड्यूस इट? आई विल कम टू बोथ ऑफ यू विद दिस। ओके, सो एक बहुत फेमस कोटेशन है, योर नेक्स्ट शॉट इज योर बेस्ट शॉट। तो आई थिंक दैट्स इनफ कि आपका कुछ छूट जाता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, वो अगली बार उससे बेटर मिलेगा। तो वो प्रैक्टिस थी आपकी कि बहुत बार एक और चीज़ हम करते हैं, जब हम कोई भी शॉट लेने जाते हैं तो मेरा एक मानना है कि आपके दिमाग में ना सबके पास एक टाइमर होना चाहिए कि यार हम किसी शॉट का इंतज़ार कर रहे हैं, 5 से 7 मिनट से ज़्यादा आप इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि जब आप उस शॉट का इंतज़ार कर रहे हैं आपको नहीं पता कि आपके बिहाइंड द बैक और कितने बेहतरीन शॉट हो रहे हैं जो आप छोड़ रहे हैं। तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि योर नेक्स्ट शॉट इज योर बेस्ट शॉट। कुछ छूट जाता है तो वहाँ से सीखिए। हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दूंगा, एक टिप देता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं या आप कैमरे से कर रहे हैं, किसी भी से भी कर रहे हैं, अगर आपको कोई शॉट दिखता है तो आप खड़े होकर वेट मत कीजिए। अगर आपको कोई मूवमेंट है तो आपका कैमरा रेडी होना चाहिए। अगर कैमरा रेडी नहीं है तो आपकी आंख पहले जो ब्लिंक करेगी उससे पहले शॉट मिस हो जाएगा। कैसा होता है कि आपका माइंड, आपकी ब्लिंक और आपका शॉट एक ही रिदम में आएगा ना, तब वो शॉट मिलता है। तो हमेशा ऐसे करके रेडी रहना है, तब शॉट लेना है। अगर आप रेडी हो तो आपका शॉट कभी मिस होगा ही नहीं, और होता है तो नेक्स्ट टाइम फिर जाए। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इट्स बीन 8 years आई एम डूइंग फोटोग्राफी, ठीक है। मेरा एक शेड्यूल है कि मैं हर ऑल्टरनेट डे शूट करने जाता हूँ, हमेशा जाता हूँ। तो आप प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ यार शॉट कभी, मेरे को लगता कभी मिस होता है, क्योंकि योर नेक्स्ट शॉट इज योर बेस्ट शॉट। तो उसी प्रोसेस में चलना है।
मैं आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्वीक करती हूँ. आप मुझे ये बताइए कि what would your mantra be if you've missed that shot? Like he has said that, you know, your next shot is your best shot, but oftentimes, especially people who are starting off, they get very demotivated कि ये निकल गया, ये shot नहीं हुआ. तो how do you keep on and how do you continue कि नहीं अगला वाला better जाएगा, कोई नहीं. मैं बस इस पर इतना ही बोलूँगा कि जो शुरू कर रहा है ना, जो स्टार्ट कर रहा है, जो ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहता है, किसी भी टाइप का ब्लॉगर बनना चाह रहा है, उनके लिए होता है कि भाई कुछ चीज़ें छूट जाती हैं. मैं पिछले 3 साल से हूँ इस फील्ड में. मैंने पेज लास्ट ईयर स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ. कैप्चर करना, शॉट्स लेना, वीडियोस बनाना, वो सब मैं करता रहा. ठीक है, 3 साल होने के बावजूद भी अभी भी ऐसा होता है कि कई बार मुझसे शॉट्स छूट जाते हैं. ठीक है, तो जैसा सचिन भाई ने बोला है, ये लर्निंग होती है, प्रोसेस है. आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा. और आप रेडी कैसे रहेंगे, आपको पता कैसे होगा कि आपको रेडी रहना है? एक्सपीरियंस. अभी आप शुरू कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि कब कौन सा शॉट आ जाएगा, कब कौन सी चीज़ें जो है आपको कैप्चर करनी है, कब कौन सी चीज़ छूट सकती है. मेरे साथ अभी भी होता है कि लेकिन मेरे पास वही सेंस है, स्टोरी टेलिंग का सेंस है कि अगर मेरे से कुछ छूट भी जाता है तो मैं उसको कवर अप कर सकता हूँ अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू. तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, जो भी अभी शुरू कर रहे हैं, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं और जो निकलते हैं व्लॉग बनाने के लिए, ट्रैवल पे जा रहे हैं, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, सनराइज़ नहीं कैप्चर हुआ, सनसेट नहीं कैप्चर हुआ, सोते रह गए, तो अगर कुछ छूट रहा है स्टोरी टेलिंग में उसको कवर अप कर लीजिए. और ये चीज़ और बोलूँगा मैं कि हर चीज़ जो है एडिटिंग नहीं होती है. आप किस तरीके से चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है. आप रॉ चीज़ें किस तरीके से ले रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. क्योंकि अगर आप वीडियो ही बहुत अगर आप शूट कर रहे हैं, उसको आप एडिटिंग में नहीं सुधार सकते. बिल्कुल. उससे आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे लोगों को. तो आपको जो है प्री पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो पोस्ट में अच्छा बन करके आएगा. और शॉर्ट्स अभी छूटेंगे. ठीक है, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा. धीरे धीरे जब आप करते रहोगे, शुरू करोगे, टाइम लगेगा, सीख जाओगे. एक टाइम आएगा कि आपका कैमरा हमेशा ऑन रहेगा और आपसे कुछ नहीं छूटेगा. मेरे से अभी भी छूट रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, और मैं कर लेता हूँ कवर. बस यही बोलना I mean, I think it's coming right from the influencer's mouth himself कि अभी भी छूटता है, पर well, you still continue. That is the key to success, I would say here. कि continue the process and trust the process. Absolutely. You know, next, moving the conversation forward at this point is a topic that we all are talking about a lot nowadays, that is AI. And what role would you say AI plays in today's editing world? AI से हमें डरना चाहिए और should be incorporated, and अगर incorporate कर रहे हैं हम AI को अपने process में, हम उसे successfully ऐसे कैसे incorporate करें कि we are using the AI tools instead of AI tools using us. That is where the fear lies today, कि आने वाले समय में AI will probably start using us. But how to go over that particular fear, और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोसेस में? आई थिंक सच बोलो तो डेंजर तो है. क्योंकि मान लो मैंने एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करी या कुछ भी है, और मैं चाहता हूँ यार उसमें काश इसमें चांद होता. मेरे को सिर्फ एक क्लिक करना है, उस पर चांद आ जाता है, और इतना इतना रियलिस्टिक लगता है ना कि आप पकड़ भी नहीं सकते कि भाई ये है, ये चीज़ है नहीं. तो व्हाट आई फील, फॉर मी फोटोग्राफी इज़ द ऑनेस्टी. ठीक है, एट द एंड आर्टिस्ट को ही पता है कि वहाँ पे क्या खेल हुआ है. तो वो ही मतलब, क्योंकि मैंने सच बताऊँगा तो मैंने एआई इतना टच नहीं किया है, क्योंकि मुझे उतना कनेक्ट नहीं होता है उस चीज़ से. मेरे लिए प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए शूट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ऑनेस्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी. क्योंकि आप एक चीज़ रिमूव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो कोई इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाएगा. आपको ही देखना पड़ेगा कि भाई आपके क्या एथिक्स बोलते हैं. यहाँ पे एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एट द एंड मेरा पता है मेन नेम क्या है. मेरी जो लास्ट ब्रेथ होगी, जो चीज़ें होंगी उन सब में, कि मैं फोटोग्राफ क्लिक करूँ, तो मुझे पता है कि मैंने क्या किया है उस चीज़ को लेके. तो आप एआई यूज़ कर सकते हो अपनी, बट आपको एक बाउंड्री भी सेट करनी पड़ेगी यार, इससे आगे नहीं. तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको अपने लिए ही कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है. नहीं तो क्योंकि बहुत सारी इमेजेस हैं जो पास्ट में हुआ है कि सबमिट हुई हैं किसी कंपटीशन में, और उनको मतलब डॉलर्स में बहुत प्राइज़ मिल गया, और बाद में पता चला है कि ये तो एआई था. ये भी हुआ है, और उसके बाद उस अवार्ड को कैंसिल किया गया है. तो आप कुछ नहीं कर सकते इसका, ये डेंजर है. यही है बस ये स्टेटमेंट. डेंजर है. Got it. But what would you have to say, Saurabh, मैं about this? बहुत ही जेनेरिक सा एक स्टेटमेंट देने वाला हूँ
ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आप अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं, सचिन भाई भी होंगे, एआई को कितनी गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है टू क्रिएट मीम्स, ठीक है, टू पोर्ट्रे समवन जो कोई कैसा है भी नहीं वैसा पोर्ट्रे करने के लिए एआई को यूज़ किया जा रहा है। हम भी हंस देते हैं, हम भी रिएक्ट कर देते हैं कि यार ये तो मज़ेदार है, लेकिन ये डेंजरस है, ये डेंजरस। डीप फेक, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी अलग अलग हैं। और अगर मैं बताऊं अपने लिए कि मैं एडिटिंग का इस्तेमाल करने के लिए एआई का यूज़ करता हूं या नहीं, या फिर हम अपने चैनल पे एआई का यूज़ करते हैं कि नहीं, हम करते हैं एआई का यूज़, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है, लिमिट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एआई पे आपको डिपेंडेबल नहीं होना है। मैं अभी भी खुद से चीज़ें करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ना कि एआई पे डिपेंड होकर के। क्योंकि अगर आप देखो, अगर मैं चाहूँ तो वीडियो क्रिएट करवा सकता हूँ 15 सेकंड की एआई से तुरंत, और अच्छी वीडियो भी बनेगी और लोग उस पर इंटरेस्ट भी देंगे, उस पर इंगेजमेंट भी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन खुद से वीडियोस रिकॉर्ड करना, खुद से वीडियोस एडिट करना, ये खुद एक एक्सपीरियंस है, ये जर्नी है, ये हमें करना है, खुद करना है। अब मैं कहीं जाऊँगा, कश्मीर जा रहा हूँ, कश्मीर जाकर के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर उसको एडिट कर रहा हूँ, तो वो जो मैं सफ़र है ना, 0 to स्क्रैच से, जहाँ से मैंने शूट किया वीडियो और जहाँ मैंने पोस्ट किया है, वो जर्नी ज़रूरी है मेरे लिए। अगर मैं चाहूँ तो घर में प्रॉम्प्ट डाल के कश्मीर की वीडियोस बना सकता हूँ और अपने पेज पे डाल भी सकता हूँ स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे, लेकिन दैट इज़ नॉट गुड। हमें वो चीज़ें चाहिए। यहाँ एथिक्स की बात आती है, बिल्कुल। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स, ये हमें पता है एज कंटेंट क्रिएटर्स, रादर आपको पता है एज कंटेंट क्रिएटर्स कि आपको एथिकली काम करना है। बट द व्यूअर्स आउट देयर, दे आरंट एक्सपीरियंस्ड इनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स। एंड अभी तो ये शुरुआत है एआई का, एंड अभी वी ऑलरेडी सी सच एडवांसमेंट विथ एआई दैट आने वाले समय में हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। सो इन दैट केस, वन कॉशनरी नोट टू योर व्यूअर्स कि मतलब डोंट गेट फूल्ड बाय द लुक एंड फील ऑफ एआई दैट एआई हैज़ टू प्रोवाइड यू। फॉर यू as content creators, you're also going out there, bringing that capturing that experience, and फिर आप वो produce कर रहे हैं अपने content में। आप अपने viewers को क्या बताएंगे इस particular note पे कि how to not get fooled by what AI has to show? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए आप एज ए कोई भी XYZ एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई क्रिएटर है, वो AI के थ्रू अपनी चीज़ें करता है, इमेज क्रिएट करता है, वो 1 लाख फॉलोवर कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। मान लीजिए वो कहीं पे जाता है और लोग भी मिलते हैं, उन्होंने उससे क्वेश्चन किया कि भाई ये आपने ऐसे किया। मैं आपको 100% बता सकता हूँ, जो कन्विक्शन है ना शब्दों में, मैं जिस तरीके से बोल पा रहा हूँ वो उसमें कभी आएगी नहीं, क्योंकि उसने वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है उस चीज़ को लेके। आप 2 मिनट में पकड़ लोगे कि भाई ये बंदा पागल बना रहा है, 2 मिनट में, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मेरी कभी उंगली कटी नहीं ना, तो मैं उसका दर्द बता ही नहीं सकता कि कैसा होता है। बिल्कुल। तो आप कुछ भी बिल्ड कर रहे हो, आप जैसे मैं आज जैसे आई मेक जब वीडियोस यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे भी, मैं एआई का बस उतना यूज़ करता हूँ कि एक आइडिया ले लिया कि इससे ये होता है। उसके बाद जो स्क्रिप्टिंग वगैरह भी है वो भी मैं अपने हिसाब से ही करता हूँ, अपनी चीज़ें उसको ऊपर नीचे ही करता हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि आप हेल्प ले सकते हो चीज़ें जहाँ तक उसमें, अगर ज़्यादा उसमें मत जाओ, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा आपको। क्योंकि ना पता क्या होता है, जब भी आप कुछ भी स्टार्ट करते हो ना, तो लोग बोलते हैं कि लोग 6 महीने बाद क्यों छोड़ देते हैं, 1 साल बाद क्यों छोड़ देते हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि ग्रोथ बहुत लंबा टाइम मांगती है, ठीक है। तो ये शॉर्टर पाथ कभी आपको नहीं देगा चीज़ें। तो फोटोग्राफी मुझे 8 साल हो गई, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस तरीके की मैं फोटोग्राफी करता हूँ उससे पैसा नहीं आता, बट वो मेरी 2 तरीके की भूख होती हैं, एक पेट की भूख और एक सोल की भूख। मैं अपनी सोल की भूख के लिए वो करता हूँ, तो वो आपकी उसी चीज़ से पूरी होगी, ऑनेस्टी से और अपने काम पे मेहनत करने से जी। अगर आपने अपने काम में पसीना नहीं बहाया तो आपने काम ही क्यों किया भाई। तो वो चीज़ जो है वो कन्विक्शन लाती है। राइट। Well, with that, we've run out of time here and we have to conclude the conversation here. But I think सारे दर्शकों के लिए we have some very important tips that they have taken from your session today. And I think the line मौत और शॉट के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए is definitely a takeaway and a winner from this conversation. अपने आप आ जाएगी। Thank you so much, Sachin and Saurabh, for joining us. But before I let you go, we have a small token of appreciation and an award as well for Saurabh. I would request Jyoti Mayal to come to the stage at this point, CEO of Red Hat Organization, and well, this award is for Leaders of Travel and Tourism, being presented to Saurabh, aka Sponsored Trip. Congratulations.
And we have a small token of appreciation for you as well. Sachin, thank you so much for joining us. And we'll come for a group photograph here. Photograph. Sorry. No worries, man. Thank you so much. Well, with that.